So yesterday we did till 22 questions and now you can solve this question fast. इसके साथ का क्वेश्चन हमने कल किया था. Okay. The question was, when you divide a number by 195, any number by 195 you get 47 as remainder. I told you to suppose quotient as 1 and add these two numbers to get the dividend. Right? कल यही बताया था मैंने कि आपको क्वेश्चन को 1 एज्यूम करना है और 195 इंटू 1 प्लस 47 आपका डिविडेंड आ जाएगा. तो आपका डिविडेंड क्या आ रहा है इस केस में? इट विल बी 242. ओके. अगर ये 242 है तो जब आप 242 को 15 से डिवाइड करोगे, 15 1 जा 15, 92, 15 6 जा 90, so your remainder will be 2. Remainder will be 2. Understood now? Yes, ma'am. Okay. Any doubt? For us, it was the kind of question we did yesterday, that a number when divided by 195 leaves 47 as remainder. So we found out the dividend first, and then we have to find the remainder if that dividend is divided by 15. So we have found out the remainder. Okay. Understood? This was the question. You can take a snapshot. Okay, let's move further. When the square of any odd number is greater than 1, 1 आप नहीं लेंगे, 1 से बड़ा आप कोई भी odd number लेंगे, उसको अगर आप 8 से डिवाइड करते हैं, स्क्वायर को उस नंबर के अगर आप 8 से डिवाइड करते हैं, it always leaves remainder as. सॉल्व करने का ट्राई कीजिए. Yes, who gave the answer? Ma'am, I think option Yes, option A is the Ma'am, correct. 1. Yes, because let us take the number as 3. Odd number greater than 1 is 3. 3 ka square is always 9. And when you divide 9 by 8, your remainder will be 1. And similar in other cases also. Okay. So your option is correct. Option A. Next. In a division sum, divisor is 10 times the quotient and 5 times the remainder. I guess we did it yesterday. Isn't it the same question? Yes, ma'am, we did it. Ma'am, 4336 was the answer. Yes, it was the same question, right? 4336 was the answer. So we are not doing it again. When a number when divided by 5 leaves 3 as remainder. 5 से डिवाइड करते हैं तो 3 रिमाइंडर मिलता है, तो हमें डिविडेंड क्या होगा? 5 into 1 plus 3, that is 8. What will be the remainder if when the square of this number was 8? Ma'am, option C. 8 का स्क्वायर 64. 64 को अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा? 4 मिलेगा. 4. समझ आया नहीं आया? For us, you didn't get it. मैम एक बार फिर से समझा दो. आपको भी क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे मैं अभी बता रही हूँ. When a number when divided by 5 leaves 3 as remainder. जब भी आपको ये स्टेटमेंट मिलेगी तो आपको पता है कि आपको 5 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 5, प्लस आपको उस पर रिमाइंडर करना है, दैट तो नंबर क्या बना आपका? 8 बना. सो योर डिविडेंड कम्स आउट एज 8. आपको लिखना नहीं होना, इतना अगर आप एग्जाम में लिखेंगे तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा सारा. ओके. सो 5 into 1 plus 3 that comes out is, तो आपका नंबर कितना आ गया? 8 आ गया. अब उन्होंने बोला है कि इस नंबर के स्क्वायर को हमने 5 से डिवाइड करना है. 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64. Ma'am. Yes. Ma'am, can you please tell which which class is this? Ma'am, this 9th or 6th classes? Ma'am, means which class is this going on? 8th 9th batch. Okay, ma'am. Neil, are you new student?
Yes, ma'am. So you're joining from today only? Yes, ma'am. Ma'am, I joined now. So can you please tell what are we doing? We have completed the chapter number system and now the exercise is going on. Ma'am, this is Okay. a badge of eighth, no? Yes, Eighth and 8th, ninth. 9th. Yes, this is the batch of 8th and 9th. Okay, so you can see all the previous recordings on the classroom portal, and if you have any doubt, you can ask them. Okay, so what I was telling is, आपको पता है कि नंबर 5 into 1 plus 3 आपका नंबर 8 आ जाएगा. नंबर that is the dividend. हमें क्या करना है, इस नंबर का स्क्वायर निकालना है. स्क्वायर ऑफ 8 कितना होता है? 64 होता है. और फिर हमें इस नंबर को चेक करना है कि वो 5 से डिविजिबल होगा तो कितना रिमाइंडर आएगा. हमें पता है 5 के पास या तो लास्ट में 0 आता है या 5 आता है. 5 1s are 5, 14, 5 2s are 10 and 4 will be the remainder. So your option D is correct. अब समझ आया? किसको समझ नहीं आया? Any doubts? If friends, Arav, yes, ma'am. turn your video on and mute yourself. Vedant, Porus. I guess I just now joined, so ma'am, by mistake my audio was on. Okay, no issues. Yes, ma'am. I'm sorry for the disturbance. It's okay, Arav. And Neil, you are also requested to turn your video on. Okay. Any doubts in this question? Our question was when a number when divided by 5 leaves remainder 3. So we found out the dividend as 5 plus 3, 8. And then we found out the square of this number. Square of 8 is 64. And we have to find the remainder when 64 is divided by 5. So when 64 is divided by 5, our remainder will be 4. किसी को कोई डाउट है तो आप अभी पूछ सकते हैं. Anybody? Okay, we're moving further. The number this multiplied by this multiplied by 7p is divisible by 3340. ये नंबर 3340 से डिवाइड होता है तो हमें बताना है कि p की मिनिमम वैल्यू क्या होगी. ओके, 334 545 334 545 into 7p is divisible by 3340. ओके, अब हमें पता है कि ये क्या होता है. ये तो पूरा कट गया तो ये 10 से बचा, राइट. ये 5 से कट जाएगा. 5 1 से 5 109. अब इसको 2 से डिविजिबल होने के लिए ये नंबर भी 2 से डिवाइड नहीं होता और 7 भी 2 से डिवाइड नहीं होता. तो p के पास क्या आना चाहिए? मिनिमम वैल्यू लेनी है. अगर p के बाद p की जगह पे 71 आएगा तो भी डिवाइड नहीं होगा. 73 आएगा तब भी डिवाइड नहीं आएगा. अब ऑप्शन से हमारे पास बचे सिर्फ दो, 72 एंड 74 ऑप्शन. तो लेकिन उन्होंने हमें क्या बोला है कि हमें मिनिमम वैल्यू बतानी है तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट. अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Arav and Neil, both of you please turn your video on. So p will Yes, be equal to 2. Okay. Next, the real number to be added to 13851 to get a number which is divisible by 87. 87 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? को प्राइम्स.
13851 को अगर हमें 87 से डिवाइड करना है, 87 इज नॉट अ प्राइम नंबर. ओके, सो इट्स फैक्टर्स आर, 87 के फैक्टर्स होते हैं 3 एंड 29. ये दोनों उसके को प्राइम फैक्टर्स हैं. ठीक है, तो अब आपको चेक करना है कि इसमें हम कौन सा नंबर ऐड करें कि ये 87 से डिविजिबल हो जाए. ओके, तो अब हम चेक करते हैं. 3 से डिविजिबल होने के लिए नंबर इज 13851. 3 से डिविजिबल होने के लिए 4, 12, 17 एंड 18. 3 से तो ये ऑलरेडी डिविजिबल है. अब हमें इसको 29 से डिविजिबल चेक करना होगा एंड 27 इज अ प्राइम नंबर, तो हमें इसको चेक ही करना पड़ेगा. ओके, 34 120. Okay, it will be at 4. It will be 116, 222, 225, and 29. 8. I guess at 8 it will go. 8, 9, 72, 7, 16, and 7. 23. So it will go at 7. Okay. 7 9s are 63. 6, 7 to the 14. It will be. So it will be 221. Okay. So 221. It will again go at 7. 203. 18. 18 हमारे पास रिमाइंडर बच रहा है. कब 18 रिमाइंडर बच रहा है? जब हम उसको डिवाइड कर रहे हैं 87 से, और 29 से जब हम उसको डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास 18 रिमाइंडर बच रहा है. तो अगर हम इस नंबर में से 18 यहाँ पे सब्ट्रैक्टेड होना चाहिए, या तो 29. इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है. यहाँ पे एडेड नहीं होगा, या तो सब्ट्रैक्टेड होगा यहाँ पे, तो आपका आंसर 18 आ जाएगा. ओके, 29 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 3 से वो ऑलरेडी डिविजिबल है. सो इस क्वेश्चन में आपके कुछ, आई विल चेक इट आउट अगेन. ओके, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. इफ द नंबर 287, दिस इज अ स्पेस, you can say A is there, or any, suppose any number is there. 563 is completely divisible by 9. ये नंबर 9 से डिवाइड होता है. Ma'am, here we will apply the divisibility rule of. Yes, here we will apply the divisibility rule of. जो भी अभी आपके पास इसके साथ के बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे. अभी मैं आपको सिर्फ 2 क्वेश्चंस कराऊंगी, बाकी क्वेश्चंस आप खुद करेंगे. सक्षम, टर्न योर वीडियो ऑन. वेदांत, ओके. सो 9 का हमारा डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9. ओके, सो हमारा नंबर है Ma'am, it should be 287. either divisible by 9 or ma'am by 3. No, it should be divisible by 9 only. For 3 Oh, it sorry, is. ma'am. Ma'am, actually ma'am 3 also follows the same divisibility rule, ma'am. Yes. That some of the digits should be divisible by 3 also by follows mistake. the same divisibility rule, but for 9 it will be divisible by 9, and for 3 it will be divisible by 3. Okay, so agar 8 plus 2 10, 17 plus 5 22 plus 6 28 and 3 31 is the sum. Okay, and we know अब यहाँ पे क्या नंबर आना चाहिए? 31 के बाद कौन सा नंबर 9 से डिविजिबल होता है? Ma'am, I guess ma'am 5. Ma'am 5 is the least number by which we Yes, can add, ma'am. It is 36 divisible. होगा. तो यहाँ पे हमें क्या ऐड करना है? हमें 5 और ऐड करना पड़ेगा उसको डिविजिबल बनाने के लिए, क्योंकि 9 के टेबल पे 9 3s are 27 and 9 4s are 36. तो 31 के बाद मिनिमम नंबर 36 ही ऐसा है जो 9 से डिविजिबल होता है.
वो बनाने के लिए हमें इसमें 5 और ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमें 5 ही लिखना पड़ेगा, उस स्पेस पे हमारा 5 आएगा और करेक्ट ऑप्शन इज 5। किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? नील आपको समझ आया? दिस इज योर फर्स्ट क्लास। ओके पारस, मैम। सक्षम, वेदांत, Yes, ma'am. समझ आया सबको ये क्वेश्चन? यस पारस। वो गलती से हो गया था। Okay. So next question is, so option C is correct. Option C is correct. Next, which one of the following numbers is completely divisible by 9? As simple, for 99 you have to check its co-primes. 99 के co-primes क्या होते हैं? 9 और 11 होते हैं। तो आप इस नंबर्स पे चेक करेंगे कि कौन से नंबर 9 और 11 दोनों से डिविजिबल हैं। जो दोनों से डिविजिबल होगा वही 99 से डिविजिबल होगा। एनी डाउट्स? Ma'am, but 9 is not a prime number. 9 is not a prime It number, is- but 9 and 11 both are co-primes. वो दोनों Yes. आपस में तो प्राइम है ना। Okay, ma'am. मैंने डिविजिबिलिटी रूल के लिए चेक करने के लिए मैंने आपको को-प्राइम्स का मेथड बताया था। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड नाउ। ओके, our question was 6 डिजिट नंबर है 5A BB7A जो 33 का मल्टीपल है। दैट मीन्स वो 33 से डिवाइड होता है। अगर हम A और B नॉन जीरो, उनकी वैल्यू जीरो नहीं होगी A और B की, तो इनमें से A प्लस B की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है? तो हमने अप्लाई करके देखा कि 11 का अगर हम रूल अप्लाई करते हैं तो मुझसे A प्लस B की वैल्यू नहीं निकाल सकते, बिकॉज B जो है वो दोनों साइड्स पे कट डाउन हो जाएगा। उसके बाद हमने 3 का रूल अप्लाई किया, तो 3 के रूल अप्लाई करने से 5 प्लस A प्लस B प्लस B प्लस 7 प्लस A, 5 plus 7 is 12 and 2 times A is there and 2 times B is there. So it will be 12 plus 2 times A plus B. अब हमें इसको 3 से डिवाइड करना है, इस पूरे को हम 3 से डिवाइड 3 से हम इसको कब डिवाइड कर सकते हैं? 12 हमें पता है कि 3 से डिवाइड होता है, जब ये दोनों टर्म्स 3 से डिवाइड होंगी तभी 3 नंबर पूरा डिविजिबल होगा 3 से। Yes, ma'am. यस वेदांत। तो 12 तो ऑलरेडी Yes, you were saying something. no, ma'am. ओके, 12 ऑलरेडी 3 से डिवाइड होता है एंड A प्लस बी 2 तो 3 से डिवाइड नहीं होता, तो A प्लस बी को 3 से डिवाइड होना पड़ेगा, इसको डिवाइड पूरे नंबर को डिवाइड होने के लिए। तो अगर हम ऑप्शंस चेक करें तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिस जो नंबर 3 से डिविजिबल है, बाकी कोई भी नंबर 3 से डिवाइड नहीं होता है। सो अवर पॉसिबल Okay, ma'am, clear. Okay, ma'am. वेदांत योर वॉइस इज ब्रेकिंग। हमें पॉसिबल वैल्यू बतानी थी A प्लस बी की, तो दैट कुड बी ओनली 9। आप यहाँ पे प्लस ऐड करके देख सकते हैं, अगर आप 2 में 8 ऐड करेंगे तो इट विल बी 10 and 10 plus 12 is not divisible by 3. 22 is not divisible by 3 and similar for other options. Okay, so मैं आपके क्वेश्चंस रह गए थे, मैं वो दोनों क्वेश्चंस बता देती हूँ। ओके, ये क्वेश्चन आपका हो गया था। If x and y are two digits Yes, of ma'am. okay, so this question was x plus y की वैल्यू हमें निकालनी थी। 9 का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करके हमने इसमें x की प्लस y की वैल्यू निकाल ली है 4। वही हमारा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में आपको एक्स्ट्रा क्या पूछ सकते हैं? नंबर 10 से भी डिविजिबल है तो उसका लास्ट डिजिट तो हमें पता है 0 हो। x और y की वैल्यूज आपको पूछ सकते हैं, तो वो आप कैसे निकालेंगे कि 10 से डिविजिबल है तो लास्ट डिजिट उसका 0 होगा, तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी और दोनों का सम अगर एक 4 है तो x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू 0 हो जाएगी। दिस वाज योर क्वेश्चन। और योर नेक्स्ट क्वेश्चन वाज let a number of 3 digits have for its middle digit the sum of other 2 digits, then it is a multiple of। सेंटर डिजिट जो है बाकी दोनों डिजिट्स का
सम है। तो हमने ऐसे काफी सारे एग्जांपल्स लिए थे, 121, 143, 253, 891, ये सभी नंबर्स हमने चेक किया तो ये सिर्फ 11 ऐसे नंबर्स जो हैं वो सिर्फ 11 से डिवाइड होते हैं और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज बी, 11. Third question was, what least value must be given to n so that the number becomes divisible by 9. So our number was 6135 and 2. Same question as previous one. हमें 9 का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करना है और उसमें चेक करना है कि वो उसके नियरेस्ट मल्टीपल कौन सा होगा सम के, और उस सम में से हमें माइनस करना है. सो 6 + 1 7 + 3 10 Ma'am, 15. Yes, Arav. can, like in the previous question, ma'am, there was one they gave one rule, ma'am, that if the first and the last number sum is the Middle number. middle number value, then ma'am we can say that there's a multiple of 11. So ma'am, Yes. is it applicable for ma'am all numbers? Ma'am, like if there are 4-digit number, in that ma'am middle center number will be ma'am No. then 4 डिजिट नंबर में आपका कोई सेंटर नंबर नहीं बनेगा, आपके सेंटर नंबर 2 बनेंगे उसमें. yes ma'am, I'm talking वो about 3 two only. डिजिट Like नंबर for का example, है. That is for 3 डिजिट Okay. नंबर्स. ओके. okay. 6 1 3 5 and 2, इसमें हम चेक करेंगे. 6 + 1 7 3 10 15 + 2 17. 17 के बाद 9 का मल्टीपल क्या आता है? 18 आता है. तो 18 17 + n = 18 होना चाहिए. तो n की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी और ऑप्शन ए इज करेक्ट. पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप.